हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ने जा रहे हैं which says if R is a ring with unity such that xy whole square is equal to x square y square for every x and y in R। So कोई भी रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो if there is a ring which has unity and moreover if that ring satisfies or elements of ring satisfies this property xy whole square is equal to x square y square for every x and y in a ring R, then this condition applies. R is commutative, so it is a kind of sufficient condition. It is not necessary, right? So उसके बाद ये पूछा गया है गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट above result may be false if R does not have a unity। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। सो लेट R be a ring with unity 1 such that AB whole square is equal to A square B square for every A and B in ring R। Now we need to show that R is commutative, ठीक है। commutative की ये प्रॉपर्टी होती है that x y must be equal to y dot x for every x and y in ring R। So let x and y be any two elements of a ring R। Now put b is equal to y plus 1। So substitute b is equal to y plus 1 here। So now we have a into y plus 1 whole square is equal to a square y plus 1 whole square। Then using distributive properties of a ring, since we know that R is a ring with unity, so it will have distributive properties. So using distributive properties we will have a dot y plus a dot 1 whole square is equal to a square into y square plus 2y plus 1, ठीक। तो ये हो जाएगा a dot y ay plus a। We are writing a dot b as ab, ठीक है, for the sake of our convenience। So ये हो जाएगा a square y square, अगेन यहाँ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम यूज करें a square y square plus 2a square y square plus a square। So we can write this as ay plus a dot ay plus a। Again here we are using distributive properties of a ring R, so which will give us a square y square plus aya plus a square y plus a square, and we can write this one as 2a y square as a square y plus a square y, right? So now applying cancellation laws, or using cancellation laws, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा, वी शैल हैव ए वाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, ठीक है। क्योंकि R जो है वो रिंग है एंड रिंग जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो इस देखो सारी टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो आप और राइट हैंड साइड में भी बोथ आर देखो दोनों तरफ क्या है, प्लस में प्लस के रिस्पेक्ट में टर्म्स है। तो नाउ पुट a इज इक्वल टू x प्लस 1, a is equal to x plus 1 in this one, then we shall have this x plus 1 dot y dot x plus 1 is equal to x plus 1 square y। Then xy plus y dot x plus 1 is equal to x square plus 2x plus 1 into y or dot y, right? So ये हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से xy
x प्लस 1 एंड y प्लस 1। और यहाँ पे भी हम अगेन वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करने के बाद हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। नाउ पुट a इज इक्वल टू x इन 1, देन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में a को आपने रखना है x, तो हमारे पास आ जाएगा x y x। तो x y x को हम लिख सकते हैं, x y x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर बाई यूजिंग 1। देन अगेन यूजिंग कैंसलेशन लॉज, हमारे पास yx आ जाएगा xy। सिंस x एंड y वर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग, तो therefore xy is equal to yx for every x and y in ring R, which implies ring is commutative। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कन्वर्स पार्ट, that if R does not have a unity and satisfies the relation xy whole square is equal to x square y square, then ring need not be commutative। तो हमने ये रिंग कंसिडर कर लिया R, which is a matrix, which is a collection of 2 by 2 matrices where A and B are coming from the set of real numbers. A and B are real numbers. So this is a ring. You can verify yourself. This is a ring by verifying its all properties of a ring. Then let A to be this element 0 1 0 0 and B is 1 0 0 0. Compute AB, which is 0 0 0 0 matrix, and BA, which will be 0 1 0 0. So now clearly we can see it is evident from here that AB is not equal to BA, which implies our ring is not commutative. So somehow we have managed to find two elements of this ring R such that A dot B is not equal to B dot A, so ring commutative नहीं है। अब हम next property check करेंगे कि ये जो रिंग है इसके एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर एवरी ए एंड बी इन रिंग आर। सो यू कैन सी दिस, let A be a general element of the ring AB 0 0 and B is also CD, this is D not alpha, CD 0 0 for some ABCD in ring R. Then AB whole square, you can verify yourself। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप उसको चेक कर लेना, ये हमेशा दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, बट अब इस रिंग के पास जो है वो यूनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इफ पॉसिबल सपोज अगर मान लो रिंग के पास यूनिटी है, तो हमने यूनिटी को नाम दे दिया कैपिटल आई विच इज सी डी, क्योंकि इसकी यूनिटी जो होगी वो यहीं से आएगी ना, रिंग के अंदर से यूनिटी आएगी, तो सी डी 0 0 इसको हमने मान लिया। एंड अगर यूनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, ए डॉट आई इज इक्वल टू ए एंड आई डॉट ए इज इक्वल टू, सो लेफ्ट यूनिटी एंड राइट यूनिटी। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग AC इज इक्वल टू A एंड AD इज इक्वल टू B। तो यहाँ से हमारे पास आ गया either A is 0 और C is 1। if A is 0 तो B भी 0 मिल जाएगा। इन दैट केस मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू अगर हम A को ले ले नॉन जीरो। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स A को नॉन जीरो कंसिडर करें, जैसे मान लो यहाँ पे हम कंडीशंस लेते, जैसे ये लिया हमने AD, दिस इज A B 0 0, अगर हम A और B यहाँ पे दोनों नॉन जीरो ले, देन ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सो दिस is not possible because if we take A to be a non-zero matrix, then this will not hold. Again similarly if C is 1 and यहाँ से आपके पास D की वैल्यू जाएगी B upon A, so which depends on element A, तो आइडेंटिटी हो जाएगी, देखो यहाँ पे यूनिटी 1 B by A 0 0, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यूनिटी जो है वो एलिमेंट पे डिपेंड कर रही है। ये देखो ये रहा एलिमेंट A B 0 0 और यूनिटी इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है 1 0 B by A 0। तो अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे तो यूनिटी चेंज हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? यूनिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिटी डज नॉट हैव इफेक्ट बाय एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की वजह से यूनिटी चेंज नहीं होती है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो अगर आप A B 0 0 चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं ये मैट्रिक्स लूँ 1 2 0 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा I बनेगा I 1 2 by 1 0 0। अगर हम इफ वी कंसिडर अनदर मैट्रिक्स 1 -1 0 0,
1 -1 0 0, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारा i बनेगा 0 -1 0 0। तो देखो अगर हम एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं तो ये ia विच इज जिसको हमने यूनिटी कहा है, तो ये भी कोरेस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है, कोरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो रही है, सो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस रिंग के पास जो है वो यूनिटी नहीं है, स्टिल it satisfies the property that ab whole square is equal to a square b square, but this ring is not commutative. So this theorem is just a sufficient condition for a ring to be commutative. It is not necessary condition. ठीक है, it is not a necessary, it is just a sufficient condition. So last में पूछा था कि एग्जांपल दो कि अब above result may be false if R does not have a unity, तो हमने ये भी चेक कर लिया कि रिंग के पास यूनिटी नहीं है, बट रिंग के पास यूनिटी नहीं है और दिस रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रिजल्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।